to access that. Okay. Okay. Thank you. Namaste. Good afternoon, everyone. Welcome. Good Welcome back to afternoon. Guftagu. And before we begin, a little bit something about AWI. AWI एक ऐसा ग्रुप है जो आपको एक सेफ और संरक्षित एनवायरनमेंट देता है दूसरी महिलाओं के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। अब AWI एक 1.5 लाख मेंबर स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कम्युनिटी है और 21 सिटीज में लोकल चैप्टर्स चलाते हैं। एंड बहुत सिटीज में अब हमारे इवेंट्स भी होने लगे हैं, तो आप ज़रूर अपने लोकल चैप्टर्स भी ज्वाइन करें। एंड स्पेशली हमारे देहरादून के चैप्टर के लिए एंड लेडीज के लिए there is a Dehradun event happening soon. Please check the details on the Dehradun chapter and the AWI group and page and join us there. We would love to meet you, and registrations are filling up quick, so please register soon. Today we are here to chat with two of our members in Guftagu. गुफ्तगू हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आप यानी मेंबर्स की बात सुनना चाहते हैं। Today we have two such members joining us, Ramani Rao and Varsha Himtani. Varsha, please tell us something about yourself. Okay, my name is Varsha Himthani and I am assistant professor by profession and teaching in engineering college in the undergraduate courses like Tech in computer and in information technology domain. And I love travel, and this group I have joined like I think 1 or 2 years ago by just scrolling the Facebook and I got this page and मुझे अच्छा लगा देख के तो I joined this group and frequently I visit this page and ऐसा देखने को मिलता था कि बहुत सारे वुमेन सोलो ट्रिप कर रहे हैं यहाँ पे और ऐसा ऐसा मुझे भी लगा करता था शुरू से ही कि कभी कोई सोलो ट्रिप मैं भी कर पाऊँ लाइफ में और Very अभी nice. ऐसा ऐसा बन ही Just गया कि we'll just hear. मैं चली गई Oh, very nice. Hey, we'll just hear from Ramani also. Ramani, please tell us something about Yes. you. Yes. So I'm Ramani Rao from Hyderabad, Telangana state. So I think just 4 or 5 months back, I was just going through the Facebook scrolling. So I found this, and it was a very unique thing. I've never seen such a group before, even though I'm in Facebook for the past say 4 or 5 years. So I was suddenly attracted to this concept of only women groups traveling. So it's a lot more safer that way, and it's more exciting. We can be ourselves, you know. Otherwise, we feel very conscious of some people around us. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं 10 years I was in tourism office, travel office. तो हमने तकरीबन मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है एंड ऑल टेम्पल टूरिज्म वी वर डूइंग, नॉट द एंटरटेनमेंट टूर्स। तो हर जगह हमने मतलब देख ही लिया वो जगह का कोई भी फेमस टेम्पल है या कोई स्थान है वहाँ का। तो so suddenly my MD passed away, who was our group leader and who was everything to us. तो थोड़ा मुझे सेटबैक हुआ लास्ट ईयर। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में वो उनके मेमोइर्स पूरे अपने किताब में लिखी। उसके बाद मैंने एक ग्रुप देखा। It was before I had already written that book. उसके बाद मैंने एक ग्रुप लिखा। सो इन हिज मेमोरी हो या मेरा ओरिजिनल जो पैशन है ट्रैवल करने का, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे फिर से एक ग्रुप ऐसा ज्वाइन करना चाहिए जो मेरा पैशन को कंटिन्यू रख सके और जिससे मैं और किताबें लिखूं, वो भी है पर्पस मेरा। सो फिर से आई वांट टू रिविजिट ऑल द प्लेसेस। सो देन आई सॉ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, एक ग्रुप बन रहा है, तो मुझे बहुत लगा। सो आई थॉट ओके, इफ वी आर विद वन ग्रुप, वहां जाते ही हम उनसे टाई अप होके वहां पूरा देख सकते हैं जो लोकल बच्चा है वहां पे वुमेन, और जो कोई यहाँ पे आता है तो आई कैन हेल्प देम द सेम वे। लुक अराउंड दिस तेलंगाना स्टेट, वी हैव मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स हियर आल्सो। तो ऐसा कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम भी लगा था मुझे। तो
Okay. That's it. I'm Okay. very happy after I've joined this. थोड़ा मेरा That's horizon बढ़ nice. गया. Yeah, my हाँ, horizon has हम सबका एक्चुअली मेरा भी बहुत horizon बढ़ा है since joining and reading the conversations on the group, तो yes, बहुत yes. अपने देश के हाँ, बारे में ही बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ जाती है। हाँ, but और ये just बहुत इंस्पायरिंग भी होता है कि हम जब देखते हैं दूसरे लोग घूम रहे हैं ऐसे, तो हम भी कर सकते हैं। yeah, that's अदरवाइज what ये बहुत ऐसा होता है कि हम लोग मतलब वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना बना नहीं पाना आता है. कि फर्स्ट टाइम पे, जैसे मेरा Exactly. दिस इज फर्स्ट टाइम, तो एक बहुत अच्छी बात थी कि मैंने पहले ग्रुप पे डाला था कि इज इट द राइट टाइम टू विजिट केदारनाथ, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और हाँ. ऐसा मैंने स्टडी जितना भी किया तो ऐसा था कि टेम्पल क्लोज हो जाता है भाई दूज पर, और मेरा ऑलमोस्ट उसी टाइम पहुंचने का वहां हो रहा था, तो मैंने इसलिए ग्रुप पे ही डाला था। और मैनी पीपल सजेस्टेड मैनी थिंग्स, और उनमें से एक मैम से मेरी बात भी हुई, उन्होंने बहुत गाइड किया अच्छे से कि कैसे यहाँ पे रहना सेफ है, Very और nice. ऐसे 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 जाने का है, और इस दिन टेम्पल क्लोज होगा, सुबह 6 बजे क्लोज होगा, वहां रहने का Very nice. बहुत अच्छे से गाइड किया। और शी इज वर्षा, वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने मतलब मेरे हर बार कॉल्स पिक करे मैंने, जब जब उन्हें कॉल किया, और अच्छे से गाइड किया Valuable बहुत। valuable inputs we are getting. Good response हाँ, and that's genuine very. and और truthful. जब मैंने अपने फोटोज पोस्ट वर्षा, किए तो मेरे पास भी कॉल्स आए कि आपको ओह, क्या प्रॉब्लम्स आई, वहां से ही ग्रुप से ही किसी ने हाँ, मुझसे कांटेक्ट किया कि मुझे भी जाना है, तो आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, और मेरी एज इतनी है, आपकी कम है शायद मुझसे, तो आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो नहीं मैंने भी वर्षा, गाइड आपकी कर दिया। स्टोरी इनफैक्ट आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग रही है बहुत मेंबर्स के लिए। सो आई फील कि आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए, आप कहाँ से ट्रैवल करें और आपका कैसे प्लान बना। आई फील थोड़ा हमको डिटेल में बताएं कि आपने मैं अपनी। जयपुर में हूँ। ओके। कहाँ से गए मतलब from where you हाँ, started? हाँ, हाँ हाँ, मैं जयपुर में रहती हूँ, जयपुर में ही जॉब है मेरा, और जयपुर में फैमिली भी है, और मेरी 4 इयर्स छोटी डॉटर भी है। तो ओह, सबसे चैलेंजिंग मेरे लिए यही था कि मुझे उसके बिना पहली बार जब से 4 इयर्स से जब से है मेरे पास, मैंने पहली बार उसे मतलब एक पूरा दिन छोड़ा हाँ, है, मतलब एक पूरे दिन से ज्यादा छोड़ा है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे साथ सोई नहीं रात में, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं 4 साल में, तो ये सबसे चैलेंजिंग था। लेकिन ये भी बहुत अच्छा था कि मतलब लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट जैसा था मेरे लिए ये, कि एक सोलो ट्रिप कर लेना अपने आप से, जिसमें मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं ली, सारे टिकट्स मैंने खुद बुक करे, और सारी गाइडेंस जो लिया वो भी सब ऑनलाइन सर्चेज, और एक मैंने जो बताया मैम से मेरी बात हुई थी, तो सारा सब मैंने किसी को भी नहीं बताया, ये सरप्राइज टिप ही रखा था, क्योंकि जैसे ही फैमिली में बताना शुरू किया तो थोड़े इश्यूज भी हुए कि दिवाली हॉलीडेज में आप ऐसे घूमने चले जा रहे हो, लोग तो घर आते हैं सब, तो लेकिन मुझे ऐसा था कि जाना ही है। और ऐसा था कि आई डोंट नो कि केदारनाथ का माइंड में कैसे आ गया, बहुत मैं एक नमो नमो शंकरा वाला सॉन्ग बहुत पसंद था मुझे, जब से आया था मैं बहुत ओके, सुनती थी, और जब भी मैं सुनती थी तो मुझे वो वीडियो चलता था तो लगता था यार यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, क्या जगह है, ऐसे लगता था। Inspiring. और Inspiring. लेकिन मैं इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के वहां ही जाना होता है, और ऐसे हर तरह की ट्रिप्स करती हूँ, शिरडी मैं मोस्टली विजिट करती हूँ, मतलब ओके, स्पिरिचुअल में मैं शिरडी ही विजिट करती थी ओके, फ्रीक्वेंटली। ओके, और या इस बार ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ ऊपर गई तो वो बहुत स्पिरिचुअल पावर भी वहाँ बहुत, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है मैम वहाँ पर, आप जब से मैं आई हूँ आई एम मिसिंग दैट प्लेस, दिन में ओके, एक बार तो लग ही जाता है कि वापस चली जाऊं। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा था, और बहुत, लेकिन मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और आई मस्ट से कि उत्तरांचल में अच्छे थे लोग, कोई दिक्कत नहीं आई, और मतलब जहाँ जहाँ भी स्टे किया सब बढ़िया था, खाने पीने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब मिल ही रहा था, रास्ते में भी सब मिल रहा था। ओके, ओके, थोड़ा एंड मेरे से देखा कि वो फेंट हो गए थे वहां पर, ऑक्सीजन लेवल्स रिड्यूस होते जाते हैं केदारनाथ में, राइट,
तो Right. जिनको बीपी या कोई बीमारियां हैं तो उनको मतलब ध्यान रखना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या प्रिकॉशंस लेके, या आई डोंट नो जो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि एक अंकल थे वहां पर जो फेंट हो गए थे और काफी देर से वो फेंट थे। आई डोंट नो उनका क्या हुआ फ्यूज बाद में, और कोई Okay. रुक भी नहीं रहा था उनके लिए, क्योंकि जो घोड़े वाले जाते हैं उनका कुछ शायद आई डोंट नो उनका क्या था एग्जैक्टली, बट कोई रुक नहीं रहा था उनके लिए। I hope वो help हाँ, पा सके and काफी लोग but रुके थे आप उनके लिए। आप हाँ, बताइए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था बिफोर द ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रिप? पता नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि मतलब एक तो ये फर्स्ट तो अपने आप से ही था कि राइट। कहीं कहीं होता है ना कि हम रात में अकेले सेफ फील नहीं करते, यस, इंडिया में स्पेशली। यस, यस। और ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा मुझे सिर्फ एक जगह डर लगा था पूरे ट्रिप में। जब मैं मेरा लौटते टाइम ऐसा था कि सुबह 5 बजे सोनप्रयाग से ऋषिकेश के लिए बस था। तो सोनप्रयाग में जहाँ मैंने स्टे किया था वो वही गवर्नमेंट के GMEN के स्टे थे। वहां से बस स्टैंड तक जो डिस्टेंस है वो 10-15 मिनट का था, और मैं थोड़ा सेफ साइड, मैंने सोचा मैं 15 मिनट और पहले निकल के जाऊं। तो मैं 4:30 बजे निकली थी वहां से सुबह, अर्ली अच्छा, मॉर्निंग। तो दैट स्टिल और डार्क इतना एंड अंधेरा था, और हाँ। बहुत अंधेरा था मैम, और ऐसा था कि लग रहा था कि कहीं से कोई जानवर ही ना आ जाए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे सुनसान सा, मतलब वो हिल पे था वो। और जब मैं जा रही थी ना, मतलब इवनिंग में जब मैं वहां जा रही थी उस तरफ, तो मुझे जाते टाइम ही लग रहा था कि मैं सुबह अकेले यहाँ पे आना है मुझे लौट के। और मैं लोगों से एक दो से पूछा कि कोई डर तो नहीं है यहाँ अकेले आने में सुबह से अंधेरे में। हाँ। कोई बोले कोई डर नहीं है, बस थोड़ा जानवरों का ही डर है। तो उसने दैट इज बोली, मतलब उसने बोल भी दिया दैट था। इज ट्रू। और मॉर्निंग में मैम इतना अंधेरा था कि मतलब मुझे आई कुछ भी नहीं दिख अंडरस्टैंड, रहा था, रोड भी नहीं। मैंने आई मोबाइल का टॉर्च अंडरस्टैंड। जलाया था, और वही हाँ, नमो नमो शंकरा करते हुए ही उतर गई मैं। और मतलब मुझे पता हाँ। ही नहीं चला, बहुत जल्दी आ गया। मतलब जाते टाइम मुझे लग रहा था बहुत दूर है, लेकिन उतरते टाइम एक्चुअली मुझे जब हम लगा ये पास में है। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे होते हैं तो अपने आप ही some power हाँ, guides हाँ, us and हाँ, we ये are होता है। ये shows इसके लिए us the एक और चीज path. हुआ मेरे साथ, एक और चीज ऐसा हुआ जो स्पिरिचुअल पावर पर मुझे लगा। जब मैं ऊपर ही थी तो मेरी सारी बुकिंग्स थी, लेकिन केदारनाथ टेम्पल के पास मेरी कोई बुकिंग नहीं थी, और मुझे स्टे करना था रात को। तो वहां पे मैंने बहुत पता कर लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। 4-5 जगह मैं गई, रूम्स अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल थे तो 5,000 मांग रहे थे वो। Right, तो right. ऐसा हुआ कि एक जगह जब मैं आके फिर टेम्पल के बाहर ही खड़े होके मैंने बोला अब आप ही कर दो अरेंजमेंट, इतना दूर तक तो आ गई मैं। अब मेरे हाँ, रहने का भी कर दो। जैसे ही मैंने मतलब प्रे किया, और मतलब हार्डली 2-4 मिनट बाद ही मेरे पीछे दो, एक बॉय और एक गर्ल खड़े थे, वो आए oh, और वो खुद ही पूछने लगे कि आप रूम्स देख रहे हो क्या, हम लोग हैं वहां पर। अरे हमें खुद उनको एक महादेव पार्टिसिपेंट ने लगे आपको आपकी सुन ली ऐसे उसी किया। समय। हाँ, वेरी नाइस। इस बिल्कुल बात पे ऐसा हम बहुत हुआ। इस बात पे हम रमानी से भी जरा सुन लें, उनकी तो बहुत एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल ट्रैवल हाँ में हाँ एंड रमानी प्लीज। यस यस सो इवन जैसे मैंने बुक लिखा है, और ये जो AWI का ग्रुप है ये ऑलमोस्ट मैचिंग है, इसलिए मैंने वो पोस्ट किया। अदरवाइज आई नो इन दिस ग्रुप आई डोंट यूजुअली पोस्ट इट इन माय ग्रुप्स। तो जो भी वो स्पिरिचुअल पावर्स है वो पूरे मैंने वो बुक में लिखे हैं। मतलब ऐसा ही होता है, इट जस्ट एनवेलप्स यू, एक ऑरा आ जाता है बस। यू कैन नॉट डिस्क्राइब स्पिरिचुअलिज्म, यू हैव टू फील इट, जैसा अभी वर्षा ने बताया। तो वो एक सिक्स्थ सेंस या सेवेंथ सेंस, जो भी सेंस है, मतलब अपार्ट फ्रॉम आवर ओन एग्जिस्टेंस, एक नयापन एक आता है। हर 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 एक को नहीं आता है, आई कैन श्योरली से दैट। It happens to very few people, like she really dared to go to Kedarnath. तो ऐसी ऐसी जगहों पे ये पूरा वो जगह का पावर्स और वाइब्रेशंस ऐसे रहते हैं कि we get involved into that, and it's not यस। ये कोई वहम नहीं है, this is the truth what I felt। हम लोग भी we went to, of course सोलो ट्रिप तो नहीं था क्योंकि we were यस। organizing tours, तो मेरा अलग टाइप का वो है ट्रैवलिंग।
So we went to this Mani Mahesh. I think every person should visit Mani Mahesh in Himachal Pradesh. It's in Bharmor division, Chamba district. तो बहुत ही Okay. remote place है. So almost you reach to the foothills of the Himalayas.